اپنی آواز اٹھائی شہزاد ٹون کی پانی کا جو مسئلہ ہمارا ایک درینا مسئلہ تھا، لوگوں کو بہت مسئلہ تھا کہ پانی نہیں مل رہا تھا. الحمدللہ 2008 سے جو لینیں ڈلی تھی وہ ہم نے اوپن کروائی اور پورے اب شہزاد ٹون میں کسی کو فلٹریشن پلانٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندے کے گھر میں پینے کا پانی صاف پانی آ رہا ہے. سیوریج کے مسئلے تھے وہ بھی ہم نے حل کروائے ہیں. روڈوں کا مسئلہ تھا وہ بھی الحمدللہ ہم نے حل کروایا ہے. خوش آمدید اور چیئرمین جناب مہربان صاحب، کبیر صاحب، رئیس صاحب اور نعیم مہربان صاحب، واجد صاحب اور کاشف بلال صاحب جو ہمارے لیے یہاں قابل احترام ہے، ہماری دعوت میں تشریف لائے اور بہت شارٹ ٹائم میں آئے ہیں. اس وقت میں دعوت دیتا ہوں کاشف بلال صاحب تلاوت پنڈال ہے. میں اپنے محلے داروں کا جنہوں نے اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنی بڑی کاوش کو منزل مقصود تک پہنچایا. یہ الیکشن ہے اور مجھے فخر یہ ہے کہ کوارٹر تھے اور کوارٹر سے کالونی بن گئی اور اس کالونی یہ صرف کالونی نہیں رہی، آج یہ ایک سیاسی ہب بن گیا. ہم 3 یونی کونسل کو پریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ جو عوام یہاں بیٹھی ہے یہ آپ کے لیے بیٹھی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ہے. میرا ایک چھوٹا سا شعر ہے اور اس سے میں ابتدان ہوں اور منہ میں زبان رکھتا ہوں. تلخ تلفظ ہے میرا مگر بے لحاظ نہیں ہوں میں. تلخ تلفظ ہے میرا مگر بے لحاظ نہیں ہوں میں رشتوں کا احترام رکھتا ہوں. میرے ساتھ اس ٹیم میں جو شامل ہیں اس میں قدیر صاحب ہیں، نیاز خان صاحب ہیں، منصور بھٹ صاحب ہیں، یوسف خان صاحب ہیں، یہاں پہ عبید سعید ہیں، عاطف صاحب ہیں، شوکت صاحب ہیں، تازہ گل بھائی ہیں، عامر بھائی ہیں اور اسپیشلی چودھری گلزیب صاحب اور راجہ جگیر صاحب جن کی کاوش سے یہ سارا پنڈال اس وقت آپ کے سامنے ہے. میں اپنے اہل محلہ سے ایک خوشی کی بات یہ کرتا ہوں کہ میری اخلاق مہربان صاحب کے ساتھ سیاسی پہلی میٹنگ تھی جو آج سے 4 سے 5 دن پہلے ہوئی اور اس میٹنگ میں نے کچھ چند مطالبات رکھے تھے. انداز سے رکھے تھے تاکہ میرا جہاں پہ بندے کا زور ہوتا ہے، جہاں پہ رشتے ہوتے ہیں، جہاں احترام ہوتا ہے وہاں پہ زور سے ہی باتیں منوائی جاتی ہیں. میری زبان سے نکلے لفظوں کی انہوں نے فوراً عمل کیا ہے اور رات گزری ہے اور صبح ان کا بندہ آ گیا میرے پاس کہ میرے لیے جو آپ نے کہا تھا وہ میں نے اس کے مطابق جو میرے 4-5 مطالبات تھے اس میں ایک قبرستان کی میں نے گزارش کی تھی کالونی کے لیے جو انہوں نے اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر میں نے پھر ویریفائڈ کیا. میرے کچھ اور بھی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو کلیئر کیا کہ ہمیں ایک کنال کے لیے جگہ انہوں نے وقف کی ہے اور ہم اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. دوسرا میں نے گزارش کی تھی ہمارے پاس پیچھے کھڈا ہے وہاں پہ بہت بڑا گند پڑا ہوا ہے 15-18 سال سے رستہ بند تھا. ان کی ذاتی کاوش تھے وہ صبح بندہ آیا میں نے 8-10 گھنٹے وہاں پہ لگا کر وہ بھی کام کروا دیا. ہماری مسجد میں کچھ کام پینڈنگ پڑے تھے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی ان کی ذاتی مہربانی کی وجہ سے وہ بھی میں نے تقریباً
आधा हो गया है, अभी हो रहा है, अगर कोई बचत हो जाएगा। कुछ हमारे छोटे छोटे काम अभी रहते हैं जो मैं इनके गोश्त गुजार कर दूँगा। नई मेहरबान साहब छोटे भाई हैं हमारे, इनकी भी जिम्मेदारी लगाऊंगा। बाकी काशिफ साहब हैं, इनकी भी लगाऊंगा। सारे काम इखलाक साहब की जिम्मेदारी में नहीं है। और हम 2 यूनियन को प्रेजेंट कर रहे हैं, यूनियन कौंसल को। इसमें कबीर साहब भी है, मेरी पहली मुलाकात है इनके साथ, और दूसरा रईस साहब हैं। इनके भी कुछ हमारे अपने मुतालबात रखेंगे। अगर अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, उसके बाद जो हमारा छोटे छोटे काम हैं उसमें कुछ मेरी इस वक्त जेब में पड़ा हुआ है कि जो 2008 का फंड मंजूर हुआ था हमारा उसका PC1, वो जो मेरे हाथ में है, मैं आप दोनों साहिबान को मैं दे दूंगा। वो 2008 में हमारा PC1 में हमारा पूरा पब्लिक हेल्थ था, वो मंजूर हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन ना दिलचस्पी लेने की वजह से वो आज ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। जब आपको अल्लाह कामयाबी देगा तो आप अपनी नज़र में हमें ज़रूर रखिएगा। और बाकी हम एक पानी की प्रॉब्लम है जो इस वक्त तो पूरे पटवार में ही है, बिलखसूस तरलाई में है। अगर जो मुतालबात मैंने रखे थे, जैसे आप जज साहब ने पहले उनको पूरा किया, मुझे उम्मीद है कि वो उसके ऊपर भी पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी जितने काम हमारे पास बेसिकली तो हमारी सरकारी कॉलोनी है, हम अपने इन टीम के साथ आपकी पूरी भरपूर हमायत का ऐलान कर रहे थे। लेकिन इस वक्त हमने हतमी शक्ल देकर ऐलान इसलिए नहीं किया, हमने हतमी शक्ल दे दी है कि आपको यकीन हो कि हम लोग सिर्फ वादे नहीं कर रहे, क्योंकि मैं इख्तलाफ राय रखने वाला बंदा हूँ। मैं हाँ के साथ हाँ मिलाने वाला बंदा नहीं हूँ। आज अगर मैं अपनी कॉलोनी के साथ खड़ा हूँ तो मैं इन भाइयों की वजह से खड़ा हूँ। मेरा ज़ाती यहाँ पे तो मैं तो 6 साल से आया हूँ, ये कॉलोनी तकरीबन 20-25 साल से है। कल अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल ऐसे ही मेरा रवैया होगा कि जैसे मैं आपके सामने में इस वक्त इनको जवाब दे हूँ, और कल ज़ाहिर है कि मैं दोबारा इनको जवाब दे हूँगा। इन्होंने मेरे अगर कंधे पे रख कर अगर इतना बड़ा बोझ डाला है तो वो मैं आप दोनों चेयरमैन साहबान को गोश गुजार हूँ कि मुझे मायूस ना करना, क्योंकि मेरे में एक ही कमी समझें कि मैं कहीं पर रुकता नहीं। मुझे सिफारिश लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी सेक्रेटरी को फ़ोन नहीं करना, मैंने किसी PA को फ़ोन नहीं करना। मैंने डायरेक्ट इखलाक मेहरबान साहब को और कबीर साहब को डायरेक्ट जाकर कहना है कि मैं वही बंदा हूँ जो कल आपके साथ था, और मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं करेंगे। और मैं ऐसा कि दावत देता हूँ रईस साहब को अपने कलमात के साथ इनको नवाज़ें। शुक्रिया। ये हमने अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं, और आप लोग इसकी छाँव के नीचे बैठते हैं और हमें ज़रा तस्कीन होती है कि चलो इसी बहाने हम आपको याद पे आते होंगे। आप इस मोहल्ले को ना संवारें, आप पूरी UC को संवार लें, लेकिन UC के साथ आप मेहरबानी करें, आप हमें भी ना भूलें। हमारे साथ सौतेली औलाद वाला जो सलूक करते हैं ना, ये ना करें। हम लोग क्वार्टर में नहीं रहते। अब ये किसी की गलत फहमी है कि हम लोग क्वार्टर में रहते हैं। हमारे पास एक वोट पावर है। हम 500 बाई 250 के स्क्वायर फुट एरिया में रहते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी वोट की पावर है इतनी पूरी UC में नहीं है। 300 से ज़्यादा हम लोग वोटों की यहाँ स्ट्रेंथ रखते हैं। एक घर में 8 से 9, 9 से 11 वोट यहाँ पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में अभी आप लोगों ने सारी वोटर लिस्ट देख ली होंगी। थोड़े एरिया में हम इतनी अगर यहाँ पे वोट पावर है तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें। ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे। हम लोग आपकी बरादरी के हैं, आपके साथ के हैं, हमारा ताल्लुक है। बिलखसूस मैं अपना कहूँ, इखलाक मेहरबान साहब की पूरी फैमिली के साथ ताल्लुक है, लेकिन बात अफसोस ये है कि किसी ने हमारी तरफ देखा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इखलाक साहब मेरी हौसला अफजाई भी करेंगे। मैं अपनी कॉलोनी का मकरूज़ हूँ। इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, बल्कि आपके सामने खड़ा हूँ। और कबीर साहब को भी चाहिए कि ये भी हमारी दादरसी करें। इलेक्शन के बाद तो मेरे ख्याल में मैंने कई सारे लोगों को ये कहता हूँ कि इलेक्शन के वक्त ज़बान कुछ और होती है, अल्लाह ना करे वो हार जाए तो कुछ और होती है, और अगर वो जीत जाते हैं तो उनके तो कुछ नराला ही जो होता है ना वो अंदाज़ होता है। आप कम अज़ कम हमें मायूस नहीं करेंगे। मेरे ये जितने भाई बैठे हुए हैं ये सारे लोग कमज़ोर लोग हैं, ये यहाँ के जागीरदार कोई नहीं है, लेकिन इतना कमज़ोर नहीं है कि इनके पास वोट की पावर ना हो। इनके पास जितनी वोट की पावर है इतनी किसी के पास नहीं है। पूरी 2 यूनियन काउंसिल में हमारे जितनी वोट की पावर, इतनी यूनिटी शायद कहीं नहीं है। इस वोट की पावर को अगर आपने कैश करवाना है तो आप हमें इग्नोर मत करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मैं अभी आपके खिताब देता हूँ चौधरी इखलाक मेहरबान साहब के साथ। मुझे उम्मीद है कि वो अपने अच्छे ख्यालात तैयार करेंगे। देखो खान का ये साथी आया है, हर एक का ये
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।